Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter International Organizations, and under this chapter we have completed the discussion, and now we are on the question answer. And in the previous class we have discussed the first question, which is uh, a multiple choice question that is given in your textbook, and now we are going to discuss the second question. The second question, it is also the question statements are there. We have to see the statement is correct or incorrect. So we see that the first statement is all security and peace related issues are dealt within the Security Council. So we have discussed about it that whenever there is any kind of matter related to security and peace, that is the under the jurisdiction of Security Council only. It is the Security Council which is concerned with the matters of security and peace. So दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि जो भी सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको कौन डील करता है, उनको सिक्योरिटी काउंसिल डील करती है. सो द फर्स्ट आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. And now we see the second statement. Second statement is saying that humanitarian policies are implemented by the main organs and specialized agencies spread across the globe. In this statement, what we find that it is talking about humanitarian policies. Humanitarian policies are those policies whose concern is human being, how to improve the quality of the life of human being, and for that purpose what is done, disease भी control होता है, एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता है, हेल्थ अवेयरनेस आती है. सो दीज आर ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज, एंड व्हाट वी फाइंड दैट मोस्टली these humanitarian policies are implemented by the specialized agency. As we have seen, UNESCO is there, WHO is there, ILO is there. They all are concerned with humanitarian policies only. So principal organs are not that much concerned. Only ECOSOC, Economic and Social Council, is there, which is concerned with the economic and social issues, which comes under humanitarian policies. Other than Economic and Social Council, no other organ has this it has to deal with the humanitarian policies. Humanitarian policies जो है वो implement की जाती है specialized agency के तरफ से ही. तो इसमें मेन ऑर्गन हम नहीं कह सकते हैं कि ऑल द जो मेन ऑर्गन्स है वो उसमें इन्वॉल्व होती है. ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. And now we see the third statement. It's having consensus among 5 permanent members on security issues is vital for its implementation. Any security matter is there before the Security Council, and the council is taking any decision, and in this decision what we find, there is very much required that all the 5 permanent members should be should have consensus. They all should agree to that proposal, then only that proposal can be implemented. Because if one of the 5 permanent members is not ready to accept the proposal, then that member can use veto, and then the proposal cannot be implemented. So it is very much required that if any resolution is to be implemented, then there must be consensus among the 5 permanent members. So this is a correct statement. And now we see the next. Next statement is the members of the General Assembly are automatically the members of all other principal organs and specialized agencies of the UN. The statement is saying that if a country is a member of General Assembly, then that membership will give them automatically the membership of other principal organs and the specialized agencies of the UN. So this is not correct. ऐसा नहीं होता है.
अगर आप जनरल असेंबली के मेंबर हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली अदर ऑर्गन्स के और अदर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके मेंबर बन जाएंगे। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। Okay, and now we come to the next question. Question number 3. Question number 3 is saying that which among the following would give more weightage to India's proposal for permanent membership in the Security Council? We know that India is claiming to have permanent membership in the Security Council. तो उसके लिए in order to make our claim stronger, we give so many arguments कि क्यों हमें मिलना चाहिए. What is the reason given by the country in order to become the permanent member of the Security Council? क्यों मिलना चाहिए, उसके लिए क्या क्या reasons है. तो इसमें बहुत सारे reasons हमने we have discussed है ना, कि किस बेसिस पे हम मांग रहे हैं, किस बेसिस पे हम क्लेम कर रहे हैं. वी आर नॉट डिमांडिंग, मांगना इज विल बी अ रॉन्ग वर्ड टू से. हम क्यों, कहाँ, किस बेसिस पे हम दावा कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, हम इसके हकदार हैं. दावा करने का मतलब कि वी हैव द राइट टू गेट इट एंड बट वी आर नॉट गेटिंग इट, है ना. तो इट्स नॉट अ डिमांड, इट्स अ क्लेम. तो हम जो क्लेम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या प्रपोज, जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट हमारा सबसे स्ट्रांग है. कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चन नंबर 3. यू विल सी दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. इंडिया has conducted its first nuclear explosion in the year 1974. At that time, it was said that this explosion is done only for the peaceful purpose, for the purpose of generating electricity, है ना. Then in the year 1998, we have conducted another explosion, and through that explosion, actually, we have completed our the process of making of that nuclear bomb. हमने nuclear bomb बना लिया 98 में. बट ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बनाया, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल फ्रॉम द इंटरनेशनल व्यू पॉइंट. इसको इलीगल कहा जाएगा. वी आर नॉट ऑफिशियली अ न्यूक्लियर पावर. अनऑफिशियली वी आर न्यूक्लियर पावर, बट वी आर ऑफिशियली वी आर नॉट अ न्यूक्लियर पावर, बिकॉज हमने CTBT पे, NPT पे, किसी पे भी साइन नहीं किया. और ये जो NPT है, CTBT है, दीज आर ऑल, CTBT क्या, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, है ना. तो CTBT ने क्या किया कि जिसने भी CTBT पे साइन किया है, all those countries have been accepted that they will not do any kind of explosion, nuclear explosion. बॉम्ब बनाने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोजन्स करने पड़ते हैं, टेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के लास्ट में वो आपका बॉम्ब प्रिपेयर होता है. तो CTBT का पर्पस यही था कि जो कंट्रीज हैं उनसे उस पर साइन करवा के कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कहीं भी आप टेस्ट नहीं कर सकते, नीदर अंडरग्राउंड और ऑन द ग्राउंड, न तो वाटर के अंदर, कहीं पर भी आपको नहीं है. कॉम्प्रिहेंसिव बैन है ये. तो इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया. क्यों नहीं साइन किया? बिकॉज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी. बिकॉज NPT उसके पहले ही आ चुका था, और NPT में कहा जा रहा है कि ओनली 5 countries विल बी देयर which are having this nuclear weapon. Other than these 5 countries, no country have the right to have the nuclear power. तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था, इसलिए इंडिया ने उस NPT पे साइन नहीं किया, और फिर CTBT पे भी इंडिया ने साइन नहीं किया. तो इट्स अ काइंड ऑफ, वी कैन से कि अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से देखें, उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो इसको एक ऐसा स्टेप कहा जाएगा जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट है, इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट है. और यही कारण था, दैट वाज द रीज़न दैट इंडिया ने मई में किया 98 में, और अक्टूबर में तुरंत उसी ईयर में अक्टूबर में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन किया, और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन उसने भी डेवलप कर लिया. और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों कंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगे सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से. क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगे? क्योंकि हमने, इट वाज अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स. एक ट्रीटी आई हुई है, हमने उस पर साइन नहीं किया है, और हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं. दो वी विल जस्टिफाई आवर पोजीशन, बिकॉज हमारे जो नेबर्स के साथ रिलेशन है वो इस तरह के रिलेशन है जिसमें कि हम कभी भी
थ्रेट में आ सकते हैं। चाइना हमारे नेबर है, पाकिस्तान, इन दोनों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है और दोनों आपस में बहुत अच्छे रिलेशन में है। चाइना न्यूक्लियर वेपन है चाइना के पास, पाकिस्तान भी डेवलप कर रहा था, तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। बट स्टिल ये आर्ग्यूमेंट ये इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते हैं कि हमें मिलना चाहिए न्यूक्लियर परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं। अगर हम न्यूक्लियर कैपेबल हुए हैं तो वो मतलब हमने चोरी से, यस वी कैन सी, कि हमने एक दूसरा रास्ता अपना करके उसको लाया है। हालांकि हम उसको डिफेंड करेंगे, बट इस बेसिस पे हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होगा। द फर्स्ट विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन ऑर्डर टू make this claim. Okay, now the second point is it has been a member. Now the second point is it has been a member of the UN since its inception. जब से UN बना, जब से UN एग्जिस्टेंस में आया, तब से इंडिया जो है वो UN का मेंबर है। UN 24 अक्टूबर 1945 को UN बना है ना, इसकी जो फाउंडेशन डे है वो 24 अक्टूबर है, और इंडिया जो था, इंडिया ने UN चार्टर पे साइन किया 30 अक्टूबर को। तो इंडिया को हम कहेंगे कि ये हालांकि इंडिया को ओरिजिनल मेंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर तक इसने साइन नहीं किया था, इसने 30 का किया। स्टिल इंडिया जो है वो इसका मेंबर रहा है शुरू से ही, है ना। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि चूंकि इंडिया शुरू से ही UN का मेंबर रहा है, तो इसको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, 51 कंट्रीज वर देयर जिन्होंने चार्टर पे साइन किया, जो ओरिजिनल कंट्रीज कहलाते हैं। तो उस बेसिस पे हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमको मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप। दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट इज लोकेटेड इन एशिया। अगर हम इस बेसिस पे भी अपना क्लेम करते हैं, तो दैट क्लेम विल ऑल्सो नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज देयर इज एशिया से तो पहले ही वहाँ पहुंचा हुआ है चाइना। चाइना इज देयर, इट्स नॉट लाइक दैट कि नो कंट्री इज देयर फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, है ना। जैसे हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से कि एक भी सिंगल कंट्री इज नॉट देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, उसके परमानेंट मेंबर्स में। तो अगर हम साउथ अमेरिका या अफ्रीका को बिलोंग करते तो हम ये क्लेम कर सकते थे, बट एज वी आर बिलोंगिंग टू एशिया एंड वन ऑफ द कंट्री चाइना इज देयर ऑलरेडी फ्रॉम एशिया, तो और रसिया भी जो है उसका एक पार्ट, मतलब रसिया इज अ बिग कंट्री, यूरेशिया उसका जो रीजन है उसको हम यूरेशिया कहते हैं। तो ऐसे में हम ये कहना भी हमारा गलत हो जाएगा कि एशिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज एशिया इज रिप्रेजेंटेड देयर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल political system. That is the most important argument. If we want to claim the permanent membership in the UN, then this is the strongest point we can present, कि our economy is growing at a very good rate, especially after 1991 when we started this globalization. तो 91 के ग्लोबलाइजेशन के बाद से हमारा जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, GDP हमारा बहुत हाई जा रहा है। देन पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल फ्रॉम द लास्ट 70 years. डेमोक्रेसी इज देयर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इमरजेंसी पीरियड वॉज देयर, यस, दैट वॉज फॉर 1.5 year ओनली। टेम्पररी टाइम था जबकि डेमोक्रेसी का एंड हुआ इंडिया में, बट दैट वॉज ओनली फॉर 18 months। एंड मोर ओवर जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, फिर से डेमोक्रेसी हम कहेंगे कि बहाल हो जाती है ना। ऐसा नहीं था कि काफ़ी लंबा पीरियड हम रहे, हुआ 1.5 साल का टाइम था, बट उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके कारण हमारी डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो ख़त्म हो गई। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते रहे हैं, बहुत ही स्टेबल है हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि हम इस बेसिस पे यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को हम क्लेम कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज B. Okay. And now we see question number 4. Question number 4 is saying that the UN agency concerned with safety and peaceful use of nuclear technology.
Nuclear technology should be used for peaceful purposes. It should not be used for the purpose of war and टेरर. तो ये जो है इसके लिए कौन सी एजेंसी है जो कि काम करती है इस डायरेक्शन में? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, है ना, जिसमें कि हमने देखा था कि इसका मेन एम यही होता है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस में यूज किया जाए. सो द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन विल बी IAEA. This is your option number B. IAEA. Okay, and now we come to the next question, and this is a multiple choice question. It's about World Trade Organization. WTO is serving as the successor to which of the following organization? कौन सा वो organization था जिसका वो successor बना है? We have discussed about this also. It was earlier it was GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, GATT. पहले वो GATT हुआ करता था, 95 में वो GATT से उसको ट्रांसफॉर्म हो गया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में. सो द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर आर टू ऑप्शंस, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. सो यू मस्ट टेक केयर कि आप जब टिक कर रहे होते हो तो एक एक जो वर्ड्स हैं उस पर हमें ध्यान देना है, बिकॉज इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं और कई बार इट हैपन्स कि वी आर नोइंग द आंसर स्टिल मिस्टेक्स आर डन, तो दैट शुड नॉट बी डन. ओके, तो ये जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ए है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. So now we come to the sixth question. This is about fill in the blanks. In this, the first question is the prime objective of the UN. UN का prime objective क्या है? The prime objective is to maintain peace and security. That is the prime objective. किसी भी अगर League of Nation भी बना था तो उसका भी prime objective यही था, to maintain peace and security. And this UN is also having the same objective, to maintain peace and security. Okay, now the second point, the highest functionary of the UN is called. UN के जो highest functionary है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं Secretary General. So I am writing down the answers. It's question number 6. Okay, 6 में जो A है वो ये कह रहा है कि UN का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी. Okay, and now B. In this, the highest functionary. Who is the highest functionary of the UN? It's Secretary General. Okay, and now see, the UN Security Council has permanent and non-permanent members. कितने permanent होते हैं, कितने non-permanent होते हैं? 5 are permanent and 10 are non-permanent. Then we have number D. Who is DAS is the present UN Secretary General. अभी हमारे Secretary General UN के कौन है? He is Antonio Guterres. Antonio Guterres, who belongs to Portugal, and he was previously the Prime Minister of Portugal. Okay, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और ये मैचिंग का क्वेश्चन है. वी हैव टू मैच द प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ द यूएन विद देयर फंक्शन, कि जो प्रिंसिपल ऑर्गन है और जो एजेंसीज है उनका क्या फंक्शन होता है. तो इन दिस रिगार्ड वी विल सी द प्राइमरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
Then specialized agencies are there like International Atomic Energy Agency, then Security Council, UN High Commission for Refugee, World Trade Organization, International Monetary Fund. Some of the agencies have been deleted from your syllabus, है ना, according to new syllabus. Like you are not supposed to study IMF because जिन जो pages mentioned है आपको पढ़ना है उसमें IMF नहीं आ रहा है. और उसके अलावे one more is there, UN High Commission for Refugee, that is also not there. But you must have you have the idea, है ना, you are knowing IMF हमने पहले भी पढ़ा है when we were discussing shock therapy in regarding that disintegration of USSR. तो we have the idea कि वो क्या करती है. If you have the option you can very well do it. There will not be any kind of trouble in doing this, है ना. तो हम लोग इसको देखते हैं कि किसके क्या फंक्शंस होते हैं. ओके, इसमें 2 कॉलम आपको दिया हुआ है, दोनों को हमें मैच करना है. सो first of all we will see ECOSOC, Economic and Social Council. What is the main function of Economic and Social Council? It looks into the economic and social welfare of the member countries. It is concerned only with the economic and social welfare. इकोनॉमिक हुआ पॉवर्टी के रिगार्डिंग वो काम करती है, कैसे पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, लोगों के बेसिक नीड्स को कैसे पूरा किया जाए. देन सोशल वेलफेयर को हुआ कि कैसे सोशल जस्टिस लाया जाए, जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्पेशली, उसको कैसे एंड किया जाए ताकि सोसाइटी के अंदर जस्टिस आ सके. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकोसॉक का काम है. द प्राइम फंक्शन ऑफ इकोसॉक इज टू लुक इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्री. सो दिस इज योर सी स्टेटमेंट. सी है ये, जिसको कि हम 1 के साथ मैच करेंगे. Okay, 1 will be matched with C. Then we see the next organ is International Court of Justice. International Court of Justice, what is the prime function of International Court of Justice? It resolve disputes between and among member countries. If there is any kind of dispute between the member countries, it resolve it. जैसे कि country के अंदर जो हमारी कोर्ट होती है, जो उसका काम होता है, the same function is done by the International Court of Justice also. So the second will be matched with number E. It is given in E. It resolve disputes between member countries or among member countries. Okay, now we go to third organ, and this is International Atomic Energy Agency. In this we see what is the prime function of International Atomic Energy Agency. The prime function is the safety and peaceful use of nuclear technology. Nuclear technology should be used for peaceful purposes. Okay, so third will be matched with D. Then fourth is the Security Council. The Security Council is the main organ for maintaining peace and order, peace and security in the whole world. So this 4th number will be matched with B. Now the 5th organ is UN High Commission for Refugee. As you can understand, it is concerned with the problems of the refugee. जब किसी एक कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस कंट्री को छोड़ के दूसरी अपने जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ पर वो जाकर के रेफ्यूज लेते हैं, वहाँ पर वो शरण लेते हैं और वो गवर्नमेंट जो नेबरिंग कंट्रीज की होती है वो उनको देती है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वो उनको शेल्टर देती है ना. तो ऐसे में जो रेफ्यूजीज होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. शेल्टर की प्रॉब्लम आती है, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो उनके पूरे नहीं हो पाते, बहुत काफ़ी कुछ उनको झेलना पड़ता है.
तो ये जो हमारा हाई कमीशन है, यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, इसका यही काम है कि ये देखे जो रेफ्यूजीज हैं, अगर कहीं किसी भी कंट्री में उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जहाँ की जिसके कारण वहाँ से रेफ्यूजी बन के लोग भाग रहे हैं, तो उन रेफ्यूजीज के जो नीड्स हैं वो पूरे होने चाहिए, लाइक शेल्टर से रिगार्डिंग जो नीड है, देन मेडिकल से जुड़ा हुआ जो उनका नीड है, वो सारे उनके पूरे होने चाहिए। ओके, तो इसको हम कहते हैं फोर्थ जो है, फिफ्थ जो है हमारा यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, इट विल बी मैच्ड विथ एफ which is in which it is given provides shelter and medical help during emergencies. जब इमरजेंसी होती है तो वो मेडिकल हेल्प और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. दिस इज योर एफ. एंड नाउ वी कम टू नंबर 6. नंबर 6 में क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. This World Trade Organization, we all know, it is related with free trade. It promotes free trade. Its main aim कि किस तरह से मेंबर कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, टैरिफ्स कम से कम हो ताकि कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़े, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़े. Okay, so World Trade Organization, it will we will match it with number J, which in which it is written facilitates trade, free trade among member countries. So it will be matched with J. Then number 7. Number 7 is International Monetary Fund, IMF. IMF is a body which looks after the global financial system, global economic system. Everything is supervised by IMF. तो IMF का जो फंक्शन है वो है oversees the global financial system. It is given in A. It oversees global financial system. Okay, and now we come to number 8. Number 8 is the General Assembly. We all know that the General Assembly is just like Parliament. जैसे एक country के अंदर Parliament होती है, in the similar way General Assembly is there at the level of the international level, है ना. और सारी कंट्रीज उसमें अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सेंड करते हैं. तो वहाँ पर क्या काम होता है? दे आर ओनली टू डिबेट एंड डिस्कस द matters of international importance. Whatever international important matters are there, it is discussed and debated in IMF. Okay, in General Assembly. So this is given in G. This 8 will be matched with G. And now we come to number 9. It's World Health Organization. World Health Organization is related with the health conditions of the people, how to improve their health condition, है ना. तो इसका जो हम statement है वो है providing good health for all. This is given in just wait a moment, there is somehow confusion. Yes, providing good health for all people. Yes, it's I. It's number 9. Number 9 में हमारा क्या है? It's World Health Organization is there and it is concerned with its main function is to provide good health for all, and this is given in I. And then number 10. Number 10 is Secretariat. Secretariat, we all know that it's just like the office of the United Nations Organization. एंड ऑफिस का क्या काम होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से चीज़ों को किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है. तो दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द सेक्रेटेरिएट. तो ये जो है इसको हम मैच करेंगे एच के साथ, विच इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूएन अफेयर्स. ओके, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज what are the functions of Security Council? And we know that the Security Council is the most important organ of the UN, and it has some very important powers also. So what we see that if there is any kind of dispute among countries, that disputes come to, if it comes to Security Council, then Security Council will recommend कि कैसे इस dispute को resolve किया जाए, how to resolve this dispute. It is recommended by the Security Council. Okay, so first of all recommendation will be there
उसके बाद सपोज कुछ मैटर ऐसा हो जाता है जिसमें कि कोई एक कंट्री जो है उसके अगेंस्ट प्रपोजल आ जाता है, वो पास हो जाता है, सारे परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स दे पास दैट प्रपोजल कि देयर मस्ट बी सम मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट दैट कंट्री। लाइक हमने देखा जब हम यूएस हेजेमनी कर रहे थे तो जिस तरह से इराक ने कुवैत पे आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो उस समय दैट अटैक वाज टोटली अनजस्टिफाइड एंड देयर वाज एफर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द यूएन टू कन्विंस इराक दैट इट शुड लीव कुवैत, है ना, बट इराक वाज नॉट रेडी टू listen to the advice of the Security Council. And then what happened? Then there was it was decided, एक रिजोल्यूशन इसके लिए पास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल से कि अब इराक के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन कर देना है, बिकॉज इराक इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द रिकमेंडेशन गिवन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहले रिकमेंडेशन किया जाता है, इफ रिकमेंडेशन इज नॉट रिस्पॉन्डेड देन military action will be there. Okay, so Security Council can take military actions also if it is required. And then we see that other than this, the Security Council has some other functions also, like it elects the judges of the International Court of Justice. We have seen there are judges in the this ICJ, और ये जो ICJ में जजेस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट उनको कौन इलेक्ट करता है? दे आर इलेक्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल। एंड नॉट ओनली दिस, सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, बिकॉज इट रिकमेंड्स द नेम ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। जिनको भी ये चाहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल बने, उनका नाम जो है वो रिकमेंड किया जाता है जनरल असेंबली को, और तब जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती है। तो द नेम इज रिकमेंडेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, सो इट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ये एक फंक्शन हुआ। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इट कैन ऑल्सो गो फॉर इकोनॉमिक सैंक्शन, लाइक रिकमेंडेशन अभी हमने जैसे कहा कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस वो रिकमेंड कर सकती है क्या करना है। अगर उसके रिकमेंडेशन को नहीं माना जाए तो देयर आर टू वेज, या तो वो मिलिट्री एक्शन लेगी या इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है, लाइक उस कंट्री को वो प्रोहिबिट कर देगी कि उसके यहाँ कोई भी सामान न तो जाएगा नहीं वहाँ से सामान आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक तरीका होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाने का भी एक तरीका होता है। एंड अदर देन दिस, द सिक्योरिटी काउंसिल कैन इन्वेस्टिगेट ऑल्सो। सपोज कहीं पर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट के पीछे व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट डिस्प्यूट, क्यों वो ओरिजिनेट हुआ, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का भी जो पावर है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। So this is all for today. We will discuss remaining questions, and some other questions, extra questions will also be discussed in the next class.